भारतीय रेड क्रस सोसाइटीद्वारा आयोजित जयपुर फुट युएसएद्वारा प्रायोजित साथै एमबिकेएस दार्जिलिङको सहयोगमा सम्बर्धना अनि परोपकार अथवा च्यारिटी कार्यक्रम दार्जिलिङ जिमखाना हलमा सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा दार्जिलिङ क्षेत्रका विभिन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कृत्रिम खुट्टा अथवा आर्टिफिसियल फुट प्रदान गरिएको थियो। उक्त विषयमा भारत सरकार विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला, जयपुर फुट युएसए प्रेम भण्डारी, युएसए ग्रेसियस ग्रिवर फाउन्डेसन संस्थापक निशान्त गर्गले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। The plan is to start train service from Dhaka to Siliguri at the earliest possible. This will take advantage of the opening of the Chilahati Haldibadi train. As you know, this is the sixth railway connectivity, pre-1965 connectivity between India and Bangladesh. And I think it is an important connectivity for linking Bangladesh with North Bengal. And it will give a lot of opportunities in the transportation of goods and also people. It will be a passenger train that you are... And we are talking about, both. But obviously, it will start with goods. I think that is important. And then over a period of time, passenger. We already have passenger trains between Dhaka and Kolkata and from Khulna and Kolkata. So passenger train between Dhaka and Siliguri is something that will bring tourists, will bring people who want to come for medical treatment, and I think this is good for the region. Any time frame that you are working on? I think we're trying to operationalize it as soon as possible. Let the announcement be made. So you must be aware of the political situation of Darjeeling, and from your ministry side, is there any initiative to contribute and to make better politically Darjeeling in Darjeeling politically? Honestly speaking, I think what is politics is something that does not involve us. We are outside because of the Darjeeling is situated in border area, so your ministry must be concerned, aware, sir. Well, we are always aware of anything that comes to involving external relations. But what you're talking about is an internal situation, and that is not in our end. So I think no comments on that. Sir, one question. Sir, Tibetan activists have always complained that the government of India has not given full-fledged, but they do not want to declare Tibet as an occupied country. They always feel that it has been a part of China. So how would you react to this? There is a very clear-cut policy here. I think India has always accepted a one China policy, with the Tibetan Autonomous Region being part of that country. There is no change in that policy. But I don't we have think not we can talk about anything which is outside of India. we have not accepted that Tibet was an independent country. It has never been that way. I don't think that has ever been the case. I think what is important is that there is a consistency in terms of policy that we conduct with countries, states. Somewhere we are mixing up what is a policy that we conduct vis-a-vis people who sought refuge in India and conduct cultural and other activities in India and the policy of the state. The aim of doing this program? नहीं, जिस प्रोग्राम का मीन्स जयपुर फुट है तो हम तो सब जगह कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर रहे हैं। और अब तक 1975 में इस संस्था की स्थापना हुई, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर फुट। इसके संस्थापक हैं पद्म भूषण DR मेहता साहब, फॉर्मर 7 चेयरमैन, रिटायर्ड IAS हैं 61 बैच के। इन्होंने 1975 में इस संस्था की स्थापना की। ये खुद जब यंग कलेक्टर थे तो उनका एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें इनके पाँव की पूरी हड्डियाँ टूट गई। तो इन्हें ये लगा कि मुझे तो भारत सरकार विदेश में भेज के भी मेरा इलाज करा देंगे, लेकिन एक गरीब आदमी कैसे अपने पाँव के लिए करेगा। वहीं से इनके दिमाग से ये शुरू हुआ कि कुछ ऐसा करना चाहिए। और आज ये जयपुर फुट, आप देखिए, एक जयपुर फुट लगाने की कीमत $70 होती है, वो भी हम किसी से नहीं लेते हैं, ये निःशुल्क है। यही पाँव अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में लगाएंगे तो इसकी कीमत 10 से 12 लाख है। फिर आप देखें, कल लोग आए हैं और आज ही उन्हें पाँव लग गए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा ये लाइट वेट जो पाम है, हमारा स्टैनफोर्ड, MIT, हार्वर्ड, इस तरह के जो वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। जैसे अगले 3 से 4 महीने में सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी के साथ पिछले काफ़ी समय से जयपुर हैंड पे काम चल रहा है, वो जयपुर हैंड भी अब आ जाएगा। अब तक 1975 से
नियरली 20 लाख दिव्यांगों की सेवा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जयपुर फूड यूएसए का, कर चुका है। 35 देशों में 85 इंटरनेशनल कैंप हम लोग कर चुके हैं। और ये बड़े गर्व का विषय है मेरे लिए ये कहते हुए कि इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी प्रोग्राम महात्मा गांधी जी के आदर्श एवं सिद्धांतों को विश्व भर में फैलाने के लिए हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पार्टनर बनाया। उसके तहत 12 कैंप विदेशों में हो चुके हैं, एक्चुअली 13 हो चुके हैं। तो 12 कैंप हुए, 12 कैंप का हमारा विदेश मंत्रालय के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। ये निःशुल्क कैंप हुए। इन सारे कैंप का खर्च भारत सरकार ने उठाया, विदेश मंत्रालय ने उठाया। और देश के विदेश सचिव का मैं आभारी हूँ कि जब हमारी पूरा ये लोग एनालिसिस करते हैं और जब देखा कि हम लोग वास्तव में बहुत अच्छा काम किए हैं, तो 5 अगस्त 2020 को हिस्टोरिक डे ऑफ राम मंदिर शिलान्यास, उस दिन हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट को 12 और कैंप के लिए बढ़ा दिया। हमारे लेग वॉरियर दिसंबर में पिछले साल जब पूरा कोरोना ज़बरदस्त पीक पे था, हमारे लोग कैंपाला के अंदर युगांडा में कैंप किए, 500 से अधिक दिव्यांग भाई बहनों की सेवा की। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं दार्जिलिंग आया हूँ और यहाँ भी दिव्यांग भाई बहनों की सेवा। दार्जिलिंग को मैंने अपने संस्थापक DR मेहता साहब से बात की है और मैं चाहूँगा ये सिस्टर सिटी की तरह हो। तो हम जितने पाँव लगा सकते हैं यहाँ हम लगा ही रहे हैं सिलीगुड़ी से। उसके बाद में भी, मेरे जाने के बाद में, ये जो रिश्ता मैंने डेवलप किया है आपके इस प्यारे दार्जिलिंग से, ये समाप्त नहीं होगा। और यहाँ से आप दिव्यांगों को पटना भेजेंगे, इनका खर्च हम वहन करेंगे, यहाँ से भेजने का, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन से लेके रहने का, रखने का, और उसके बाद में उन्हें जयपुर फूट लगा के हम उन्हें वापस भेज देंगे। तो मतलब यहाँ पर सेंटर होगा आप लोग का सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग में? नहीं, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में अभी सेंटर नहीं है। मैं प्रस्ताव रखूँगा कि एक सेंटर, जैसे हमने 2019 में पुलवामा शहीदों के लिए जब कैंप किया था, तो हमने ये जमशेदपुर में किया और मुझे वहाँ लगा कि ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमने एक परमानेंट सेंटर, मैंने रिपोर्ट बना के भेजी हमारे संस्थापक को, और वहाँ परमानेंट सेंटर 2019 में हमने शुरू किया। दार्जिलिंग में मैं देख रहा हूँ लोगों को ऊपर आने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो सिलीगुड़ी पे मैं देखूँगा कि यहाँ बड़ी अच्छी संस्थाएँ हैं और इस तरह से अगर हमारे कोई लोकल पार्टनर होंगे तो मैं पूरा प्रयास करूँगा इस बारे में। डिफरेंस तो एक बताऊँगा कि मुझे पहले से ज़्यादा मकान बन गए हैं, पहले से ज़्यादा सड़कें बन गई हैं, और बाकी तो लोग वैसे ही हैं जो जिस तरह से पहले मैंने पाया था यहाँ पे। और एक बहुत ही खुशी की बात है कि दूसरे हिल स्टेशन में जहाँ धीरे धीरे नेचर का थोड़ा डिग्रेडेशन हो रहा है, वो हमारे यहाँ भी कम। हमारे यहाँ जो पेड़ हैं दूसरे हैं अभी भी अच्छी तरह से मेंटेन हैं और एनवायरनमेंट इज़ गुड। आज के प्रोग्राम के बारे में? आज का प्रोग्राम तो अभी प्रेम भंडारी साहब ने आपको बताया। मैं खुद DR मेहता साहब से निजी तौर से परिचित हूँ और सबसे पहले उन्होंने, वो हमारे सर्विस के सीनियर ऑफिसर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे एक दफ़े पूछा था और मैंने उन्हें मैंने जब उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम बताओ कौन सा इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है, तो काफ़ी चीज़ें सोच रहे थे उसमें, बीच में सडनली ही सेट जयपुर फूड। और वास्तव में देखा जाए तो हमारे देश में इन्वेंशंस बड़े कम हुए हैं और ये एक ट्रूली इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट हमारी तरफ से दुनिया को एक भेंट आप मानिए। जैसा कि अभी बताया प्रेम भंडारी ने कि करीब 20 लाख लोगों को ये लिम्ब पूरी दुनिया में अभी तक लगाए गए हैं। इट्स अ बिग थिंग। और जब से मुझे ये मालूम चला और प्रेम भंडारी साहब से मेरा परिचय हुआ, सो मैं भी इसी संस्था के साथ अब एसोसिएटेड हुआ। और जब इन्होंने एज एन एडवाइज़र, अभी इन्होंने जब कहा कि अब ये दार्जिलिंग करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं खुद यहाँ पोस्टेड था 96 से 99 में, उसके पहले मैं जलपाईगुड़ी में 94 से 96 था। और अब मेरी भी बहुत इच्छा होगी कि अगर हम सिलीगुड़ी में कुछ ये व्यवस्था कर सकें जिससे कि न सिर्फ दार्जिलिंग के, सिलीगुड़ी के, बल्कि आसपास के नॉर्थ ईस्ट के भी लोग अगर आ सकें, और जो पटना सेंटर के थ्रू अगर हम यहाँ पर कोई कोलैबोरेशन करके अगर सर्विस दे सके लोगों को, तो मुझे बड़ी खुशी है। बाहर के बेटे हैं, तो हाउ यू फील ये आज जो प्रोग्राम हो रहा है? मेरे को इतना गर्व हो रहा है, इतना गर्व हो रहा है कि आज मैं जहाँ से पला बड़ा, जहाँ से मैं आज जो कुछ हूँ,
पूरा दार्जिलिंग के कारण हूँ, मैं यहीं से सब कुछ बनाऊँ तो, और मैं आज आके यहाँ के लिए कुछ कर सकता हूँ जयपुर फूड के साथ मिलके, बीइंग अ सेक्रेटरी ऑफ जयपुर फूड, और इतना कुछ हम लोग कर सकते हैं सबके लिए, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है, स्पेशली मेरे दार्जिलिंग के लोगों के लिए। जब मेरे को पता चला कि ये जयपुर फूड क्या ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इनके साथ एसोसिएट हुआ, मैं एज अ वॉलंटियर एसोसिएट हुआ, और अब मैं सेक्रेटरी हूँ जयपुर फूड का। और जब मैंने प्रस्ताव रखा एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने कि हमें भाई दार्जिलिंग जाना चाहिए, मेरे टाउन में भी बहुत डिफरेंटली एबल्ड पीपल है दार्जिलिंग में, और वहाँ पे जाके हमें पैर लगाने चाहिए सबके लिए, तो इस कारण से और साथ ही साथ हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब की जो दार्जिलिंग के कोइंसिडेंस बहुत अच्छा हो गया चीज़, और इसी के कारण हम चाहते हैं दार्जिलिंग पूरा टोटली डिफरेंटली एबल्ड पीपल का टोटली आउट हो रहे, और हर एक बंदे को पैर लगे, उसमें कोई भी कमी नहीं रहे, और थोड़ा सा भी कुछ हो गया वी विल ऑलवेज बी देयर, जयपुर फूड विल ऑलवेज स्टैंड।